Welcome to lexspace.in. In earlier videos, we have discussed about Hiba, that is gift under Muslim law, and in this video, we will be discussing about Marzul Maut. So now let us understand the meaning of Marzul Maut. मर्ज का मतलब होता है डिजीज एंड मौत मीन्स डेथ, यानी कि मर्जुल मौत इज अ डिजीज विच कॉजेज डेथ. नाउ व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ मर्ज, यानी कि जब कोई पर्सन इलनेस से सफर कर रहा है एंड ही इज अंडर एन एप्रीहेंशन कि उसकी मौत हो सकती है, दिस इज नोन एज मर्जुल मौत. इट इज ऑल अबाउट द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ that we term as marzul maut. Now marzul maut can be any disease of a kind which is highly probable to cause death. जरूरी नहीं है कि उसकी डेथ होगी, but it is highly probable कि उसकी डेथ हो सकती है और उसको वो apprehension है. The person under illness has an apprehension that उसकी most probably death हो सकती है. So now let us discuss the essentials of marzul maut. तो पहला essential हमारा है preponderance of apprehension of death. Now this apprehension of death must be because of the illness that the person is suffering from. अब वो पर्सन को ये एप्रीहेंशन होना चाहिए कि मेरी इलनेस की वजह से मेरे को डेथ कोज हो सकती है. इट इजंट कि मेरे को कोई मार देगा तो मेरी डेथ हो जाएगी. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलनेस, कि उसको इलनेस की वजह से ये एप्रीहेंशन होना चाहिए कि मेरी डेथ हो सकती है. नाउ दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. दिस इज सब्जेक्टिव विद रिगार्ड टू द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द इलनेस. ये पेशेंट के लिए, हर पेशेंट के लिए वेरी करेगा. इफ अ पर्सन इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज आउटलुक, अगर वो पर्सन, वो पेशेंट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है एंड इज थिंकिंग कि मैं रिकवर कर जाऊंगा इस इलनेस से, सो इन दैट केस अगर वो कोई गिफ्ट करता है तो वो मर्जुल मौत नहीं होगा. हाउएवर, अगर पर्सन को ये एप्रीहेंशन है कि नहीं मैं मर जाऊंगा या मैं मर सकता हूं बिकॉज ऑफ दिस डिजीज, तो वो मर्जुल मौत होगा. It isn't कि other people are thinking of. Other people वो ये सोच सकते हैं कि नहीं, he can still recover. That doesn't matter. What matters is the patient, the apprehension of the patient. Now, number 2 is the external indica. Now, there must be some external indication which must also reveal the proximate degree of death. Say for example, a person isn't capable of carrying out his physical activities, like वो prayers नहीं कर पा रहा है, वो call of nature नहीं जा पा रहा है. So it is all about the physical incapacity. अगर कुछ ऐसी चीज है कि उसकी वजह से वो अपनी डे टू डे रूटीन नहीं कर पा रहा है, so it is the external indication that there is a danger of death. So next essential is the eventual death. Now वो डिजीज ऐसी होनी चाहिए जो डेथ को रिजल्ट करे. ऑलराइट, सो वी नीड टू सी कि वाज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द गिफ्ट कि जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई. ऑलराइट, सो दीज आर द 3 essentials and all these 3 essentials are the question of fact. These may vary from the cases to cases. Now अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डू वी सी कि सीरियसनेस ऑफ इलनेस कितनी है for determining whether it is death bed gift or not. So seriousness of illness doesn't matter at all. Sometimes it happens कि जो illness है वो बहुत serious है. Say for example cancer है लेकिन वो prolonged disease चल रही है, काफी टाइम से चल रही है, continuity में वो disease चल रही है. तो in that case sometimes क्या होता है, a person gets familiarized with the disease. ठीक है, he knows कि हाँ ठीक है एक दिन मेरे को मरना है, वो 1-2 साल से उसको कैंसर है, वो सफर कर रहा है. So he gets familiarized with the disease. So in that case we won't count it as मर्जुल मौत. लेकिन वहीं पर दूसरा इंसिडेंट ये होता है कि someone is suffering from common cold or someone is suffering from pneumonia, which is very common, है ना. But in that case what may happen is the person may have an apprehension of death. There was a case. Now it depends upon the state of mind of the person. What we do is we check the state of the mind of the person. If what the person think at that point of time, does the person apprehend कि उसकी डेथ हो सकती है नहीं हो सकती, is the main criteria. We need to understand कि apprehension, if there is any kind of apprehension or not. We need not take into consideration कि seriousness कितनी है, seriousness of illness कितनी है.
Now we can refer to a case Shamsher Ali Shah versus Hassan Shah. इसमें क्या हुआ था? There was a 65-year-old woman who was suffering from pneumonia. See, pneumonia is a very common disease. और किसी को भी हो सकता है. अब उसने क्या किया? The old woman ने उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया और वो उसके बाद मर गई. In this case, it was held that it was मर्जुल मौत. Why? Because during pneumonia उसको ये apprehension थी कि she might die because of this pneumonia. So what we can conclude here is कि हमें यहाँ पे apprehension देखनी है, apprehension देखनी है of the patient कि वो मर सकता है या नहीं मर सकता. It isn't about the seriousness of illness. Pneumonia is not a so serious illness कि जिसकी वजह से डेथ होना ही हो जरूरी है. So let us discuss the transaction during मर्जुल मौत or the nature of transaction during मर्जुल मौत. The gift made during मर्जुल मौत is subject to all the conditions and formalities of the gift. Say for example, gift में हमारा possession of property ट्रांसफर करना जरूरी होता है. सिमिलरली मर्जुल मौत में भी जब हम गिफ्ट करते हैं उसका ट्रांसफर ऑफ पोजेशन जरूरी होता है. ऑलराइट, एंड इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द सेम रेस्ट्रिक्शंस एज इन द केस ऑफ विल. से कि विल में जैसे 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी जो है हम विल में उससे ज्यादा हम विल में ट्रांसफर नहीं कर सकते. सिमिलरली गोज फॉर मर्जुल मौत. मर्जुल मौत में 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. और जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ये सिर्फ नॉन आयर को की जा सकती है अनलेस ऑल द आयर्स कंसेंट ना अनलेस ऑल द आयर्स कंसेंट टू इट. अगर सारे आयर्स कंसेंट कर जाते हैं कि प्रॉपर्टी जो है किसी आयर को ट्रांसफर की जाए तो ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है. सो मर्जुल मौत बेसिकली नॉन आयर को ट्रांसफर होती है. नॉन आयर को मर्जुल मौत ट्रांसफर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है मर्जुल मौत के अंडर. लेकिन अगर आयर को ट्रांसफर करनी है तो इन दैट केस ऑल कंसेंट ऑफ ऑल दी आयर्स इज इम्पोर्टेंट. अगर आयर को करनी होगी तो कंसेंट इम्पोर्टेंट है. हमें हर एक आयर की कंसेंट चाहिए. अगर एक भी आयर जो है कंसेंट नहीं देता है तो प्रॉपर्टी किसी आयर को ट्रांसफर नहीं की जा सकती है. नाउ केस अराइजेस कि मर्जुल मौत में तो सिर्फ एक एप्रीहेंशन होती है. और व्हाट इफ पर्सन रिकवर्स फ्रॉम मर्जुल मौत, तो उस केस में क्या होगा? इस केस में जो गिफ्ट है वो फेल नहीं करेगा बट इट विल टेक इफेक्ट एज अ गिफ्ट. नाउ गिफ्ट में क्या होता है? गिफ्ट में हम पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन विल में 1/3 की एप्लीकेबिलिटी होती है, 1/3 की कंडीशन होती है विल में. गिफ्ट में 1/3 की कोई भी कंडीशन नहीं होती है. सो इन दैट केस क्या होगा कि अगर वो रिकवर कर जाता है तो ये 1/3 की कंडीशन जो है वो हट जाएगी. सो इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द विल. और जो गिफ्ट है वो 1/3 से ज्यादा अगर उसने किया है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो एज अ गिफ्ट यानी कि पूरी प्रॉपर्टी उसकी ट्रांसफरी को चली जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट मर्जुल मौत. In the next video we will be discussing the difference between gift made during मर्जुल मौत and donatis moratis causa. If you like the video, do not forget to share and subscribe the channel. Thank you.